Assalamu alaikum, girls. This is your teacher, Miss Najiha. So, this is my second lecture, and this is in continuation for the first part. I strongly suggest girls कि आप लोग किताब जो है वो भी ज़रूर पढ़िए because in my lecture I am only covering the main parts and the main concepts. So I'm not going line by line. Okay. And I hope all of you are good and using this lockdown time with a positive thinking and doing some positive activities. So let's start with this presentation. Okay. So in my last video lecture, I just briefly told you about the different six food groups that we have. And today we're going to discuss the first food group, that is the cereals and the starchy group that we have. Now, this food group is actually predominant in the carbohydrate nutrient. Although the foods that we have in this group do have other nutrients such as minerals and B vitamins, especially B1, B2, and B3, but these are present in very smaller amounts. Okay, or most of the cereals that we have, like the rice, wheat, corn. If you notice, these are all the staple foods of people around the world. Staple foods क्या होते हैं? वो foods जो तकरीबन हमारी डाइट में हर रोज़ ही शामिल होते हैं. जैसे चावल is a staple food of Asia. Then in Africa, cassava is their staple food. इसी तरह से साउथ अमेरिका में corn is their staple food. और पाकिस्तान में भी हमारे दो ही स्टेपल फूड्स हैं, एक चावल और एक गंदम की रोटी, जो तकरीबन हम हर रोज़ ही खा रहे होते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट बाय looking at the structure of the seeds of the different grains that we have. Okay, the first grain is the seed of wheat. Then we have second picture is this is the seed of rice, and then we have the corn seed. अच्छा, अगर आप इन तीनों सीड्स के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको इनका स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन एक जैसा ही लगेगा. So if you look at it, all of these seeds have an outer hull or an outer covering. This hull or an outer covering, this has no nutritional value, और ये यूजुअली जो है एडिबल भी नहीं होता, और इसको ग्रेन्स पे से ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग रिमूव भी कर दिया जाता है. देन आफ्टर दिस आउटर हल we have other inner layers which are known as the bran. Okay, and या इसको आप पेरिकार्प के हैं या टेस्टा के हैं, तो ये भी फाइब्रस layers ही होती हैं, and they contain few nutrients. Okay. Then inside this bran, there is another very thin layer which is known as aileron layer, which is rich in protein, vitamins and mineral. उसके बाद आप देखें तो आपको हर सीड में छोटा सा एक पार्ट नज़र आ रहा होगा जर्म का. ठीक है, जर्म या एम्ब्रियो इसको कहते हैं, एंड दिस इज द न्यूट्रिएंट रिच पार्ट ऑफ द सीड. ऑलराइट. और जो सबसे मेजर पार्ट ग्रेन का होता है, दैट इज द एंडोस्पर्म. And this endosperm is basically all starch. ठीक है. So there is not much difference between all these three seeds, as you can see. इनकी लेबलिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है, डिपेंडिंग किसी में लेयर्स थोड़ी ज़्यादा हैं, कम है. Alright, so let's look at what happened, because what happened with the processing of these grains, क्योंकि grains हम as it is तो consume करते नहीं हैं. They do go certain processes for humans to consume. First process जो होता है grains के साथ, that is we cook the grains. Okay, so we can't eat the grain of rice as it is. Alright, so we soak them and we cook them and we eat them. Second process that is very common with these grains is fermentation. And by fermentation, usually the product that is consumed around the world
is actually the alcoholic beverages. Okay, and then we have milling. This is the most common process that is done with these cereal grains. And through this process of milling, we get the different variety of flours that we actually consume in our diet. जैसे wheat या गंदम से after the milling you get the जो चक्की का आटा होता है, एक तो आपको एक wheat whole wheat flour मिलता है, और एक आपको हमारे जो डाइट में मोस्ट कॉमन है दैट इज़ मैदा कह लें आप या रिफाइंड फ्लावर। ओके। इसी तरह से चावल की हमें 2 वैराइटीज़ मिल जाती हैं, एक तो व्हाइट राइस होती है एंड द अदर वन इज़ द ब्राउन राइस दैट यू मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द मार्केट। अच्छा, हमारे कल्चर में कॉर्न जो है वो सिर्फ या तो हम भुट्टा पूरा खाते हैं एज अ स्नैक, या अब कॉर्न्स के कर्नल्स भी मिलते हैं फ्रोज़न फॉर्म में। वी ऑल्सो कंज्यूम दैट, या भुने हुए भी हमें अक्सर आपको जैसे बाहर ठेले पे मिलते हैं वो भी होते हैं। इसी फॉर्म से हम ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, तो ये जितनी भी आपको टॉर्टिया की चपातियाँ नज़र आती हैं, दीज़ आर एक्चुअली मेड फ्रॉम कॉर्न। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चिप्स एंड स्नैक्स दैट यू ईट एक्चुअली इज़ मेड फ्रॉम द कॉर्न। अगर आप उस पे गौर करें, जितने भी सीरियल्स इनफैक्ट बाज़ार में रखे हुए होते हैं, ये भी कॉर्न सीड से ही बने हुए होते हैं। ठीक है? अच्छा, तो मिलिंग में होता क्या है? आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एन एग्ज़ाम्पल ऑफ लेट्स से व्हीट। तो व्हीट की जब मिलिंग होती है तो इसका जो आउटर हल होता है, अ, जो हमें वैरायटी मिलती है, आउटर हल तो चले रिमूव हो जाता है, ठीक है? उसके बाद ब्रैन होता है हमारे पास, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो होता है। तो जो होल व्हीट फ्लावर होता है, जिसको हम चक्की का आटा कहते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास ग्रेन का जो पार्ट होता है इस चक्की के आटे में, यू गेट द ब्रैन, ठीक है? एंड यू गेट द एंडोस्पर्म एंड यू आल्सो गेट द जर्म। सो व्हाट्स रॉन्ग विद द मैदा या रिफाइंड फ्लावर? उसमें क्या नुकसान होता है? उसमें आप देखेंगे कि आपका जर्म, उसमें जर्म भी रिमूव हो जाता है, आउटर ब्रैन भी रिमूव हो जाता है, जितनी भी आउटर लेयर होती है सीड्स की वो सब रिमूव हो जाती हैं। सो व्हाट डू यू गेट? In the end, you just get the endosperm. All right. And endosperm is what? I just told you. Endosperm is starch, and starch is a carbohydrate. So you're only getting starch. तो आपको कोई उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। तो जो मैदा आप लोग खाते हैं या जो रिफाइंड फ्लावर या उससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो मज़े-मज़े की चीज़ें आपको याद है पिछली प्रेज़ेंटेशन में जो प्लेट में रखी थी, ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं। सो व्हाई दे आर नॉट गुड? बिकॉज़ दे डोंट कंटेन मच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। वो आपको कोई ग़िज़ाइयत तो नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जो होल फ्लावर होता है, जिसमें आपका ब्रैन भी होगा, ग्रेन का आउटर लेयर भी होंगी, तो न्यूट्रिएंट्स तो उसमें है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव होल व्हीट फ्लावर, चक्की का आटा, उसको हमें कंज़्यूम करना चाहिए, बजाय इसके कि आपके घर में रोटियाँ मैदे से बने या आप हर रोज़ नान खाएँ। इसी तरह से ब्रेड्स में भी, दैट्स व्हाई ब्राउन ब्रेड इज़ बेटर देन द व्हाइट ब्रेड। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द राइस, राइस में भी जो हम लोग राइस एशिया में खाते हैं, दैट इज़ वाइट राइस एंड पॉलिश्ड राइस। उसमें भी इसका सारा आउटर ब्रांड वगैरह रिमूव कर दिया जाता है। फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ब्राउन राइस इज़ मोर न्यूट्रिशियस। रीज़न? Because the nutrients are mostly present in the outer layer and in the germ. And when you have a white and a double polished rice, you're only eating starch basically. और जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते भी हैं ग्रेन में, और जब आप चावलों को कुक करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उनको सोक करते हैं और फिर वो पानी फेंक देते हैं। तो जो losing the water soluble vitamins as well. So that's why this is not a preferable way of cooking rice. ब्राउन राइस जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी विद टाइम आएगी। अगर आदत नहीं है तो हम उसको कुक करके अपनी आदत बना सकते हैं। सिर्फ ये होता है कुकिंग में, कंपेयर टू वाइट राइस, आपको ब्राउन राइस जो है वो ज़रा ज़्यादा देर के लिए सोक करना होती है, और फिर आप उसको कुक करें तो वो आराम से कुक हो जाती है, और टेस्ट में कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं होता कंपेयर टू वाइट राइस एंड ब्राउन राइस। And actually, when you if you are more health conscious, then taste can be developed.
और इतना बुरा टेस्ट होता नहीं है ब्राउन राइस का। सो वाइट राइस की एक और जो इसमें प्रोसेसिंग होता है दैट इज़ नोन एज द पार बॉइलिंग। ठीक है, पार बॉइलिंग ये होती है, अगर आप अपनी किताब में पेज 260 पे भी देखें तो एक पिक्चर में सारा पार बॉइलिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब हुआ हुआ है। और पार बॉइलिंग में बेसिकली चावलों को हल्के साथ ही पानी में सोक किया जाता है, जिसकी वजह से आउटर लेयर्स में जो भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जैसे जैसे वाटर अंदर जाता है, ये ग्रेन थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसके साथ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स भी ग्रेन के बीच में सेंटर में चले जाते हैं। उसके बाद फिर इस वाइट राइस का जो हल है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो पार बॉइलिंग राइस आर also better from nutritional point of view rather than having just a simple polished white rice। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कॉर्न के बारे में बात करते हैं। वेल, दिस इज़ द काइंड ऑफ अ कॉर्न दैट वी आर accustomed to eating, okay, but corn is very widely grown in America, for example, और इस किस्म के कॉर्न्स भी वहाँ पर ग्रो होते हैं। एंड दीज आर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न्स। ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफाइड, या दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसको इंटरनेट पे सर्च करें कि व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, और ये कितने हार्मफुल हैं, या इनके क्या-क्या नुकसानात होते हैं। और दिस इज़ समथिंग दैट यू पीपल शुड नो। चूँकि मैं इस वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को इतना कवर नहीं कर सकती बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो आई रिकमेंड कि इसको आप लोग खुद सर्च करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में ये होता है कि सीड्स को जेनेटिकली the scientists they play with it in the lab and they change their characteristics, and then if you look at the rice, you see पाकिस्तान में भी आपको राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं। Like once I remember I went to an expo, it was a food expo, and there was a stall of rice, and I was amazed by looking at the varieties of rice that are produced only in Sindh. Okay, and even in this picture, if you look, there is also red rice, and there is a rice which is black. I don't know. In some cultures, maybe this kind of rice is also consumed. Okay, and then I want to talk about this yellow rice that you see. This is known as the golden rice. Okay, and this was also produced by genetic engineering, in which actually beta carotene is added. तो जो मैंने एक प्रोसेस लिखा है ना, फोर्टिफिकेशन, सो चूंकि ये स्टेपल फूड्स हैं और तकरीबन हर रोज़ खाए जाते हैं, तो जब फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड की जाती है तो ये देखा जाता है कि वो फूड जो है वो वाइडली कंज्यूम्ड हो किसी भी कम्युनिटी में। इसीलिए राइस के लिए बहुत सारी अटेम्प्ट्स की गई हैं कि इनको जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उस कम्युनिटी में, तो किसी तरह से राइस को फोर्टिफाइड कर दिया जाए। तो ये कुछ साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बीटा कैरोटीन विटामिन ए राइस में शामिल की है, एंड दैट्स व्हाई द कलर इज़ yellow. So, with this, let's move on to the next topic in this chapter, and that is the starchy roots and sugar. Again, starchy roots and sugar rich in carbohydrate, and this includes the potatoes. Sorry, let's start with the cassava. Cassava is widely grown in Asia and Africa, and you can see the picture below. Okay, it looks like अरवी, इसे हम लोग खाते हैं, लेकिन ये अच्छी खासी साइज़ में बड़ी होती है। And then basically cassava is low in protein content, so it should be taken with other cereals and legumes. चूँकि ये अफ्रीका में एज अ स्टेपल फूड खाई जाती है, अगर सिर्फ यही उनकी डाइट में होगा तो देयर कैन बी प्रोटीन डेफिशिएंसी। दैट्स व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड कि इस चीज़ कसावा को दूसरे सीरियल्स और लेग्यूम्स के साथ कंज्यूम किया जाए। Then cassava contains a cyanogenic glucoside toxin, which I also told you in the previous video lecture. This is an anti-nutrient, but when you peel, soak, and boil the cassava before consumption, the effect of this toxin is reduced to a quite great extent. Then fermentation or fermenting cassava also reduce the cyanide content.
Then we have other starchy roots such as the potatoes, sweet potatoes, arrowroot, and yams. Okay, so sweet potatoes contain good quantity of vitamin A and some vitamin C. Yams, many varieties have more protein than cassava but less than cereals. यानी cereals के मुकाबले में जो है कम होती है प्रोटीन yams में. Yams हमारे यहाँ जो मिलते हैं ना जैसे अरवी, ठीक है. Then potatoes, they provide small quantities of vitamin B and C, and its vitamin C content also reduces with storage. तो बहुत potatoes को बहुत देर तक store करने से इसको avoid करना चाहिए. Then the arrowroot are similar in nutrition as potatoes. Arrowroot भी starchy roots होती हैं. वैसे तो हम लोग उसको शायद as it is consume नहीं करते, लेकिन इसके flour जो है वो available होता है. And I don't know, I have never eaten it. And I don't know about you people, आप लोगों ने कभी खाया हो या नहीं खाया हो. So with this, let's talk about brown sugar and white sugar. शुगर का एक प्रिंसिपल रूल याद रखिए कि शुगर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है. नाउ विद दिस, लेट्स कम. Where do we get the sugar from? We get it from sugarcane and sugar beet. It's pure carbohydrate. It's only giving us energy, okay? No other nutrients. So sugar usually they don't have any nutritional uh, value, but since sugar is part of our diet, so शुगर जो अवेलेबल होती है हमें मार्केट में या बाज़ार आप जाएंगे तो आपको तीन तरह की आपको शुगर मिलेगी. एक तो वाइट पॉलिश्ड आपको शुगर मिलती है, ठीक है. इट इज़ शुगर का बहुत ज़्यादा जो रिफाइंड फॉर्म है ना, दिस इज़ वाइट शुगर and this is not at all good for health. Then we have brown sugar and it is partially refined and nutritionally it is better than white. Why? Because brown sugar has a molasses, so mineral content is more. If you want to search more on this, you can search on the internet what is molasses. ये naturally present होता है cane sugar में, और during processing जब इसका cane juice से उसको dry किया जाता है तो उसमें पहले तो molasses होती है, लेकिन फिर बाद में molasses को भी remove कर देते हैं तो you get the white sugar. But अगर brown sugar में molasses है, so there is some mineral content that you get from the brown sugar as well. Jaggery is nutritionally better as it is not chemically processed as white sugar. तो जैगरी जो है बड़ी रॉ फॉर्म है शुगर की. और जितने भी इफ़ यू आर मोर हेल्थ कॉन्शियस तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक बात याद रखें, जितना कम प्रोसेसिंग से गुजरा हुआ होता है उतना बेहतर होता है. कार्बोहाइड्रेट्स की टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है जितना उनको आप रिफाइन कर लें. तो शुगर में जैगरी इज द लेस रिफाइंड form of sugar that we have. Okay. So, with this, let's start with the next topic, and that is legumes. Okay, so legumes are actually the edible seeds of the plants, and they have very good quantities of proteins, vitamins, and minerals, carbs, and this is one of the cheap sources of getting protein. So if people they cannot have food from the meat group, for them legumes is a they are a wondrous family of seeds that you can have, and it includes, as you can see in the picture, all kinds of lentils, very common to our culture, and all the beans and chickpeas. It is included in this group. However, there is one seed, soya beans. अच्छा, सीड्स के अलावा जितनी भी फलियां हैं वो भी इसी ग्रुप में आती हैं. एंड सोयाबीन, सोया की फली, दिस इज वन प्लांट फूड दैट कंटेन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स. ठीक है. एंड दिस इज soybean, and these are the beans, the different beans that we have. And this is the groundnut peanuts. And peanuts are actually again a very good source of protein, especially those who अगर whose diet or they are malnourished, या उनको
प्रोटीन एनर्जी malnutrition है। पीनट्स आर रियली गुड बिकॉज एक तो ये इतने महंगे नहीं होते, जितने भी नट्स आपको अवेलेबल है उसमें से पीनट्स हैं जो कि सस्ते होते हैं कंपेयर टू almonds and cashew nuts. All right. They do have a high fat content, but this fat is actually mono and polyunsaturated fatty acids, and 40 to 60% of this fat is oleic fat. So it's a good fat. पीनट्स के साथ ये है कि अगर आप इनकी स्टोरेज जो है सही तरह से ना करें, एंड इफ दे आर स्टोर्ड इन सम डैम कंडीशन, दिस कैन रिजल्ट इन अ फंगस growth. So this fungus or this mold is Aspergillus flavus, and this fungus produces a toxin which is known as aflatoxin. Now, some of the research has shown that this aflatoxin, it actually affects the liver, and it may cause cancer or a liver cancer. Then we have different nuts and seeds in the nature, and we consume them, such as coconut and coconut water, coconut flesh. Both of these things are really good from nutritional point of view. From coconut water, you get the calcium, magnesium, potassium, vitamin C, and carbs. And coconut flesh gives you fats, mostly saturated fatty acids, and actually they're good for health. Okay. इसी तरह से we have cashew nuts. Okay. And in this picture you can see the cashew nut when it's on the tree. और अगर आप देखें तो कैश्यू नट नीचे है और ऊपर इसकी एक स्टॉक है which is the swollen stalk, and actually it contains good quantities of vitamin C, not in our culture but I'm sure in some other community around the world the stalk is also consumed for vitamin C. एक्चुअली कैश्यू नट्स को प्लांट पर से जब रिमूव किया जाता है तो फिर उसको स्टॉक में से भी रिमूव कर लिया जाता है, और फिर इस तरह से इसको कंज्यूम किया जाता है. सो दे आर रियली गुड इन फैट्स एंड आल्सो हैव प्रोटीन, कार्ब्स एंड मिनरल्स. Then we have these sesame seeds or simsim. They are widely grown for oil extraction. और sesame seeds जो हैं हम वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं. बर्गर बन्स के ऊपर तो बस सो कॉल्ड सेसमी सीड्स ही लगी हुई होती हैं, बट एज अ स्नैक वी डू हैव सेसमी सीड स्नैक्स, जैसे तिल के लड्डू होते हैं. सो दे रियली गुड टू हैव them because nutritionally you get the good fats, proteins, minerals, especially calcium. Okay, so for all those girls who don't like milk, you can have sesame seeds. तिल के लड्डू खाएं आप लोग, ठीक है. So, आपको आयरन भी मिलेगा, विटामिन बी एक्सेट्रा ये मिलेंगे. सो इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए. इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, they are also rich in antioxidant, vitamin E, linoleic acid. Do you remember linoleic acid? These are essential fatty acids. It's also known as omega 6. And then sunflower seeds also have minerals and B vitamins. So now let's move on to vegetables and fruit. Okay, see, vegetable and fruit, important part of our diet and very good for our health. Okay, and this is one food group which is minimally processed. मतलब फ्रूट्स की प्रोसेसिंग अगर होती है, होती तो है, लेकिन फ्रूट्स को नेचुरल फॉर्म में एज इट इज़ खाना ही हमारी सेहत के लिए बेहतर है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल्स फॉर मिनिमम न्यूट्रिशनल लॉस, वेजिटेबल्स को जब कुक करना जाना चाहिए तो दे शुड बी ईदर बी स्टीम्ड और कुक्ड ऑन लो हीट. Vegetables should preferably be boiled with skin on. For example, अगर आपको potatoes boil करने हैं, so it's preferable कि आप उसको छिलके समेत boil करें. And why is that so? Because if you're going to boil potatoes with their skin removed, your water soluble vitamins जो थोड़े बहुत उस potato में होंगे वो भी पानी में चले जाते हैं. And then of course you're going to throw the water, right? So with vegetables, we get them in the canned form, in the frozen form. They're also pickled to preserve for long periods.
and they contain fiber, good quantities of vitamin A, C, iron, and calcium. Vegetables में जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं न्यूट्रिशनली दे आर बेटर देन लाइट ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच इज बेटर देन लेटस और कैबेज फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये नेचर में एक तरह का कुछ अल्लाह ताला ने रूल रखा है कि जितनी डार्क कलर सब्जियाँ डार्क कलर वेजिटेबल्स होती हैं न्यूट्रिशनली दे आर better. Then fruits, they are a good source of vitamins, especially vitamin C. They're not at all a good source of proteins or fat. Then avocado, a fruit not so common in Pakistan, but it is mostly common in America and maybe in some other countries. I don't know. I'm not sure about that. But it is one fruit which is high in fat. Otherwise, बाकी फल जो होते हैं, they are not high in fat. So when we talk about the consuming of fruits, it is better to have fruits rather than fruit juices. And why? Because you actually lose the fiber in juice. ठीक है? So it's better कि आप fruit का juice बनाने के बजाय उसको as it is ही खा लें. Then use of pesticides is something of it should be of a concern. ये सब्जियां जिस तरह से ग्रो की जाती हैं हमारे यहाँ तो उनमें बहुत ज़्यादा ये पेस्टिसाइड और स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं और जिन सब्जियों के जो छिल या फल जो हैं जिनके हम उनको एज इट इज़ कंज्यूम करते हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं अगर स्ट्रॉबेरीज के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली दैट पेस्टिसाइड विल एंटर द स्ट्रॉबेरी एज वेल लेकिन जिन सब्जियों के ज़ाहिर पेस्टिसाइड्स जो होती हैं वो उनके आउटर पील्स पे लगी हुई होती है सो इट्स बेटर टू पील योर वेजिटेबल्स वेल and then consume them so you don't get these pesticides inside you. Okay, so let's see. uh, these are three fruits that you see. Okay, अगर मैं आपसे पूछूं विटामिन सी इन तीनों में से किस में ज़्यादा होगा आपके ख्याल में गवावा ऑरेंज या मैंगो. So if you're having one mango you're getting around 122 mg of vitamin C. अगर आप एक ऑरेंज खाते हैं you get around 63.5 mg and in guava you're getting 125.6 mg. So yes, guavas are a really good source of vitamin C. And of course mangoes का सीजन है तो mangoes और guava के कंटेंट में तो फर्क नहीं है. But this is not a standard rule. I'm sure with the different varieties of mango and with the different varieties of guavas, the nutritional content may vary, but not to a great extent. Yes. And let's talk about iron. क्योंकि आयरन के बारे में भी अगर किसी से पूछें कि भाई आयरन की बहुत अच्छी सोर्स बताएं तो सेब का नाम आता है अक्सर. सो लेट्स सी आप लोग मुझे बताएं. मुझे अगर हम आप एक 4 इंच डायमीटर का अनार लें या 3 इंच डायमीटर का सेब और 1 कप डाइस्ड वाटरमेलन which one do you think has more iron? So when you eat this pomegranate anar, this gives you around 0.85 mg of iron. An apple is giving you only 0.22 mg iron. Okay, not even 1 mg of iron is there in apple. And then in watermelon you have 0.36 mg. 1 cup diced अगर आप watermelon खाते हैं. ठीक है. So इतने ज़्यादा कोई हाई क्वांटिटी नहीं है आयरन की इन तीनों फ्रूट्स में, बस है थोड़ी बहुत. अब आप देख लें आपको कितनी क्वांटिटी खानी होगी to even get 1 mg of iron from these fruits. Then we have these green leafy vegetables and as you can see in spinach 1 cup cooked अगर हम spinach खाते हैं तो आप उसमें देख लें आपको कितना calcium और iron मिल रहा है. And remember this is a dark green leafy vegetable. And then we have 1 cup shredded cabbage and you're getting look compare the calcium and the iron content with the spinach. Okay, so it is way less than the nutrition calcium and iron that you're getting from the spinach.
and then half cup shredded lettuce leaf, ये भी light green vegetables में शुमार होता है इसका, and you can look at its calcium and iron content. So Janab, let's move on to the next food group, and this is the meat, fish, and egg group. And this group of food is actually a high protein food group. Okay, और फूड ग्रुप जो है एक्चुअली दिस इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू मोस्ट डाइट। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो ग्रुप खाना है ये आपको दूसरे फूड ग्रुप्स के साथ कॉम्प्लीमेंट या उनके साथ मिलाकर खाना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी ये हर रोज़ इसका खाना जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ओके। प्लस दे आर एक्सपेंसिव बट दे डू हैव हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन गुड अमाउंट। And the amount of fat, this depends on the animal, कि वो जानवर चाहे बकरी हो, गाय हो या मुर्गी है, वो किस तरह से रेज हुई है और उसकी फीट क्या है, और फिर उसको मीट कट क्या है जो आप खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ना सिर्फ उसका फैट डिपेंड करता है उस एनिमल के इन तमाम बातों पे, बल्कि उसकी जो भी उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट होगा वो भी इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देन ओफल, इसको हम क्या कहते हैं, जो ऑर्गन मीट होता है हमारा, ठीक है। हमारा नहीं, जानवरों का, दैट हैज़ अ रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। Fish is also a good source of nutrients, protein. Fish liver oil has a good quantity of vitamin A and D, and the amount, of course, varies with the age and species of fishes. Then chicken, broiler versus desi. This is one discussion. So this is one discussion that is on कि ब्रॉयलर मुर्गी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या देसी मुर्गी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है। So from whatever I have learned about this thing, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं या जो लोग भी हैं, एक चीज़ आप समझ लें कि ब्रॉयलर मुर्गी जो है ना वो एक ख़ास ब्रीड है, और ब्रॉयलर मुर्गी को ग्रो ही इसीलिए किया जाता है फूड कंजम्पशन के लिए, क्योंकि फूड प्रोडक्शन या डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए वो मुर्गियाँ जो है उनकी ग्रोथ इस तरह से होती है कि वो जल्दी से बड़ी हो जाती हैं, और देसी मुर्गी की जो ब्रीड है वो बिल्कुल अलग है। फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स वो मुर्गी आपके लिए बेहतर है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप ब्रॉयलर ना खाएं और देसी खाएं और देसी ना खाएं, क्योंकि देसी मुर्गी का गोश्त जो है वो ज़रा देर से गलता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप जहाँ से जो मुर्गी ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो रेस्ड कैसे हुई है। जो ग्रास फेड चिकन्स होती हैं या हेन्स होती हैं, या जिनकी फीड अच्छी होती है, नेचुरल फीड होती है, वो मुर्गियाँ जो होती हैं बेसिकली दे आर द बेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेंगी? इसके लिए आप लोग को अगर आप इसको सर्च करें, देखें, तो बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं, चूँकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है, अखबारों में बहुत आर्टिकल्स आए हैं कि ब्रॉयलर मुर्गी ना खाएँ, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। वैसे ऐसा है कुछ नहीं। इवन पीकॉक्स के लिए भी कहते हैं कि ब्रॉयलर चिकन खाने से पीकॉक्स या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों में। But this is not proven by any research. All right. So yes, desi chicken is a good. You should have it. All right. और उसके अलावा आपको ब्रॉयलर चिकन में भी जो अच्छी तरीके से रेज हुई हुई होती हैं, ऐसी कुछ कंपनीज हैं या बिजनेसेस हैं who are selling really good hygienic chicken, and you just have to find them and search them on net, बिकॉज़ जब आप ढूँढेंगे तो फिर आपको मिलेगी, और नहीं ढूँढेंगे तो फिर आप वही जो आम चिकन मिल रही होती है, आप उसको फिर कंज़्यूम करें। बाय द वे, इसका कोई ख़ास खाने से आई डाउट कि कोई नुकसान होता है, बट अगेन इट्स योर चॉइस। Okay, the important thing is that you get all the nutrients from this group, but this group provides you no carbs. Another important group in this high protein group is milk, and with milk there are lots of milk products that are made from the milk. So as far as milk is concerned, it is
a high biological value proteins, and the proteins that are present in milk are carcinogen and lactal albumin. The fat that is mostly present in milk is saturated fat. Milk दो nutrients ऐसे हैं जो कि milk is a poor source of those nutrients, and that is iron and vitamin C. अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो माँ का दूध ही है, एंड इट इज़ बेस्ट इफ़ इट इज़ कंटिन्यूड फॉर मोर देन 1 ईयर। बच्चों को जो माएँ दूध नहीं पिला सकती, ठीक है? फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमेशा माँ का दूध ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से माँ नहीं पिला सकती, देन यू कैन स्विच टू द काऊ मिल्क एंड द गोट मिल्क। लेकिन जो बच्चे की ज़रूरत माँ की दूध पूरी करती है, वो कोई गाय और जो दूसरे सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, दे डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, और या वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मदर मिल्क का, ठीक है? मिल्क की बहुत सारी फॉर्म्स और प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, एंड द फर्स्ट मिल्क फॉर्म दैट वी हैव इज़ द टेट्रा पैक मिल्क कह लें या डब्बे का दूध कह लें आप, ठीक है? इट इज़ यूएचटी ट्रीटेड, दैट इज़ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इस दूध को बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हाई हीट पर हीट किया जाता है, देन इट इज़ होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि दूध का जो फैट कंटेंट है वो पूरे दूध में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और वो फिर उस दूध से अलग नहीं हो सकता। जैसे आम तौर से खुला दूध जैसे आप घर में लेकर आते हैं एंड वी बॉयल इट, तो आफ्टर व्हेन यू कूल डाउन दैट मिल्क, द फैट ऑफ दैट मिल्क राइजेस अप, और ऊपर आपके एक बलाई की लेयर बन जाती है, ठीक है? डिब्बे के दूध में ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो होमोजेनाइज्ड हुआ हुआ है, ठीक है? जबकि खुले हुए दूध में आप बलाई को आराम से निकाल सकते हैं, और फिर बलाई से आप घी बना लें, और दूसरी चीज़ें भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकती हैं, जो कि फैट से क्रीम्स बनती हैं, दैट यू कैन मेक एट होम। And another form that we have is the whole powdered milk. It is suitable for infants when no breast milk is available. इस दूध को भी प्रोसेसिंग के ज़रिए बड़े बड़े चैम्बर्स में दूध को डाल के हीट करके या स्टीम करके इसका पाउडर जो है वो बना दिया जाता है. Then we have another form of milk, that is the evaporated and condensed milk. Well, in both of these forms of milk, actually the water is removed from the milk, and the only difference between evaporated and condensed milk is that a condensed milk is sweetened by the addition of sugar. So condensed milk is sweet and evaporated milk is not sweet. Then we have skimmed milk. Skimmed milk में क्या होता है कि fat जो है that is removed, and then it is in its dried form, it is known as DSM, dried skimmed milk. यूजली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में डीएसएम जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट, ऑलराइट। स्किम मिल्क वैसे काफ़ी एडवर्टाइज किया जाता है, टू नो यू शुड हैव इट, बट इफ़ यू आर नॉट ओवर वेट, यू आर नॉट ओबीज, यू डोंट नीड टू कंज्यूम स्किम मिल्क एट ऑल, ओके? अगर आपका वेट का इशू है, ओनली देन यू शुड गो फॉर द skim milk. Otherwise, go for the whole milk, the one milk that you have with the fat. क्योंकि नेचर ने, अल्लाह ताला ने आपको दूध ऐसे ही दिया है जिसमें फैट भी है, सब कुछ है, तो इसका मतलब है हमें वो चाहिए या हमें उसकी ज़रूरत है. सो वी डोंट नीड टू रिमूव इट, ओके, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम weight issues. Then a product, a supplement that is made from the milk, it is the casein, and it is the protein of the milk, and it is used in PEM treatment. Then another product that is made from the milk is cheese, and cheese is actually made by when you let the milk clot, जैसे दही बनाते हैं, and then you remove its water, so you get a very solid concentrated form, और फिर उसको ड्राई किया जाता है और काफ़ी अर्से तक स्टोर किया जाता है to develop a particular cheesy flavor in that cheese. And there are many varieties of cheese available, and this is an excellent way of using excess milk, ठीक है? अब
घर में जो चीज़ आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ट्राई मेकिंग कॉटेज चीज़ एट होम, ठीक है, एंड यू विल फाइंड मेनी recipes for that on YouTube. Then let's talk about fats and oils. Okay, this is one food group um, which we all consume, and this group has lots of advantages. But if you consume it in excess, it might have some harmful effect on our health as well. Okay, so let's first talk about butter. Butter is actually mostly saturated fat, and it has a good quantity of vitamin A and D. Now that depends कि butter किस दूध से बना हुआ है. Usually जो market में आपको butter मिलते हैं, you might get them fortified with vitamin A and D. लेकिन naturally जो घर में butter बनता है, तो उसमें ये matter करेगा कि वो जो दूध है वो जितना enriched होगा, तो butter भी उतना ही enriched होगा. ठीक है. एंड देन वी हैव मार्जरीन. मार्जरीन और बटर, इनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि बटर जो है वो आपकी मिल्क फैट से बनता है, ठीक है, जो दूध के ऊपर बलाई आती है उससे बनता है बटर. और मार्जरीन जो है ये दूध से नहीं बनता है, बल्कि ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है. वेजिटेबल ऑयल को बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन उसको बटर जैसी शक्ल दे दी जाती है. एंड it was actually invented as a substitute for butter. But initially इसमें problem ये था कि this product used to have trans fat, and trans fat, according to the researches, it shows that they are not at all good for our health. But now the modern techniques and processes that have been developed, and because of that, अब जो margarine available होता है उसमें trans fat जो होता है वो नहीं होता है. सो ट्रांस फैट एंड सिस फैट्स, आई एम श्योर आप लोगों ने जब फैट्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि ट्रांस फैट और सिस फैट्स क्या होते हैं. अगर नहीं भी याद आ रहा तो जस्ट गूगल इट आउट. ट्रांस फैट वर्सेस सिस फैट्स, ठीक है, सिस CIS. So we will get to know the difference. So the fat content in margarine is unsaturated fatty acids, और बटर में you get saturated fatty acids, क्योंकि दूध जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो बटर में आपको जो फैट मिलता है दैट इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. और मार्जरीन में चूँकि वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ होता है, इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स जो है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है. Then we have all the different vegetable oils and ghees that are available and that we consume, and we cook our food using these oils and ghee. ओके. सो घी भी जो नेचुरल घी होता है, जो देसी घी होता है, उसको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड नाउ द रिसर्चर्स हैव प्रूव दैट इट इज़ नॉट बैड फॉर योर हेल्थ. सो यू कैन कंज्यूम घी इन योर डाइट. एंड if as far as vegetable oils are concerned, uh, try to get a vegetable oil which is a single pure oil, ठीक है, instead of a blended oil, यानी दो तीन ऑयल्स मिला के जो ऑयल अवेलेबल होता है मार्केट में, उससे बेहतर ये है कि आप सिंगल सीड का जो है वो ऑयल लें. और ऑयल्स में से सबसे बेहतर जो ऑयल है दैट इज़ ऑलिव ऑयल. और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है ऑलिव्स का. सो ऑलिव्स जो हैं, अगर आप ऑलिव ऑयल मार्केट में देखें तो एक तो आप ऑलिव ऑयल की बॉटल्स पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा प्योर ऑलिव ऑयल, ठीक है, प्योर ऑलिव ऑयल. और फिर एक बॉटल आप ऑलिव ऑयल्स की देखेंगे उस पे लिखा होगा एक्स्ट्रा वर्जिन. सो व्हाट्स द डिफरेंस? प्योर ऑलिव ऑयल इज़ एक्चुअली बेटर फॉर कुकिंग यूज़, मतलब अगर आपने कुकिंग करनी है तो गेट द प्योर ऑलिव ऑयल, बिकॉज इट इज़ अ ब्लेंडेड प्रोसेस्ड, कोल्ड प्रोसेस होता है. मतलब ये कि उसको हाई हीट पर नहीं इतना जो है वो उसको हीट किया जाता है ऑलिव्स को टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल. इसमें फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन जो होता है, इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ इट ऑन सैलड्स बिकॉज इट हैज़ अ लो स्मोक पॉइंट. तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में इट इज़ नॉट प्रेफरेबल टू डू योर कुकिंग, ठीक है. और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्चुअली इज़ मोर गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज इट इज़ कोल्ड प्रेस्ड and it contains more antioxidants and anti-inflammatory substances.
The fats that are present in olive oil are usually oleic acids. Then we have beverages and condiments. Well, this is a one-page chapter in your book, and I recommend कि आप इसको खुद ही पढ़ लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाऊंगी। इसमें थोड़ी-थोड़ी सी बातें हैं, जैसे वाटर एज अ बेवरेज, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, एंड ऑल ऑफ अस when it comes to beverages, drink water rather than choosing other drinks to quench your thirst. बेवरेजेस में कुछ ट्रेडिशनल बेवरेजेस होती हैं हर कम्युनिटीज़ में, जैसे हमारे यहाँ भी है गन्ने का जूस और सत्तू और लस्सी, ठीक है? इसके अलावा वी हैव द मॉडर्न प्रोसेस्ड बेवरेजेस, सोडा ड्रिंक्स वगैरह। ऑलराइट, सो इफ यू जस्ट कंपेयर इट, देन आई वुड से कि ट्रेडिशनल ड्रिंक्स आर better than these modern beverages, because all these modern beverages and soda drinks, they are very high in sugar content. They don't give you any nutrient, okay? And आप मुझे खुद बता लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, 7 अप आपकी प्यास बुझाएगी या पानी? ऑनेस्टली आप लोग इसका जवाब जो है अपने आप से ही खुद पूछ लें। इसके अलावा सोडा ड्रिंक्स में आजकल जो नई-नई ड्रिंक्स आ गई हैं, स्टिंग्स और बुल, रेड बुल, all these are not at all good for your health. You can look up at the researches that have been done on these soda drinks. PubMed, PUBMED is a website जहाँ पे सारी researches जो भी साइंस में होती हैं वो published होती हैं। उसमें you can look at the researches done on soda drinks and you see yourself that how harmful these drinks are for your health. उससे तो बेहतर, बहुत बेहतर जो सत्तू है जो आपको मिल रहा होता है, वो है, या गन्ने का जूस है। हाँ, उसमें आप ये ज़रूर देख लें थोड़ा हाइजीन और सफाई-सुथराई कि वो सही हो। देन उसके अलावा फ्रूट जूसेस जो हम लोग लेते हैं, जो कमर्शियल फ्रूट जूसेस हैं, दे आर नॉट एट ऑल इक्विवेलेंट टू द फ्रूट जूस you make at your home. Okay, so usually, in fact, some of the commercial fruit juices that you have are just colored fruit, नहीं फ्रूट तो कहना ही नहीं चाहिए, इट इज़ जस्ट कलर्ड वाटर। सिर्फ उसमें एडिटिव्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स शामिल करके उसको फ्लेवर दे दिया जाता है। उसमें कोई फ्रूट नाम की चीज़ भी नहीं होती है, ठीक है? सिवाय आई थिंक जो मैंगो जूस आपको मिलता है उसमें थोड़ा बहुत कोई मैंगो पल्प होगा, बट अगेन लॉट्स ऑफ एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड, सो इट्स बेटर कि अगर आपको इतना ही फ्रूट जूसेस का शौक है, तो प्लीज़ गेट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट एंड मेक फ्रूट जूस एट home. As far as teas and coffees are concerned, not much of nutritional significance, but they have other health benefits, such as green teas have antioxidants, good for health. Even coffee, the researches that have been done on coffee also shows good, मतलब इसका भी हमारी हेल्थ पे कोई इतना कोई बुरा असर नहीं है। Coffee is not that bad for your health. Then we have different condiments, the spices and herbs that we have. चूँकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम इस्तेमाल करते हैं, तो एज़ सच कोई इतनी न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हमारे एपेटाइट को इंक्रीज़ करने में और डाइजेशन में डिफरेंट हर्ब्स एंड स्पाइसेस दे हैव देयर रोल। Then with all this is it for all the food groups that we had, and let's now talk about fortification. What is fortification? It is the addition of one or more nutrients in a food to improve the food quality with the goal of reducing or controlling the nutrient deficiency. ठीक है, और फोर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्यों इंसान को ज़रूरत महसूस हुई कि वो जो ऑलरेडी जो एक फूड है, उसमें जो है वो 1-2 और न्यूट्रिएंट्स ऊपर से भी डाल ले, ठीक है? Why this need was so why the need was felt was because चूँकि फूड प्रोडक्शन के साथ-साथ फूड की प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिंग बहुत ज़्यादा मशीन्स के थ्रू और बहुत हाई मिलिंग होने लगी, तो उससे क्या होता था कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। फिर इस वजह से भी ज़रूरत महसूस की कि जो न्यूट्रिएंट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग हो गया है, अब उसको ओवरकम करने के लिए
Why don't we add the nutrients that were lost in the processing? So fortification जो थी वो स्टार्ट हुई, और दूसरा मकसद फोर्टिफिकेशन का जो था वो ये था कि किसी भी फूड प्रोडक्ट को हम इनरिच कर सकें, जैसे कि मिल्क, मार्जरीन एंड फ्रूट जूसेस। और एक मकसद तो फोर्टिफिकेशन का डेफिनेटली ये है, और ये स्टार्ट भी इसीलिए हुई थी क्योंकि जब वर्ल्ड वाइड communities were found to be deficient in nutrient, so to a way to overcome those nutritional deficiency, the foods started to become to be fortified with the nutrient. Now there are certain rules for fortification that one has to follow. You just cannot pick up a food and fortify it with any nutrient that you like. So the first rule for fortification is that आप जिस न्यूट्रिएंट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं किसी फूड प्रोडक्ट में, सो फर्स्ट यू शुड नो वेदर दैट इज़ अ नोन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन पॉपुलेशन और नॉट। मतलब किसी भी पॉपुलेशन और कम्युनिटी में आखिर किन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो मौजूद है। फिर ज़ाहिर है आपने वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड में ऐड करने होंगे, ठीक है? देन सेकंड रूल इज़ दैट व्हेन यू आर एडिंग the nutrient in any food, the price of the food should not increase. क्योंकि अगर आपने एक फूड को fortified कर दिया with some nutrients, all right, and after that the price of the food is so much that it is not affordable to the masses, to the general population, then what's the use? कि अगर एक खास सिर्फ एक elite group या थोड़े से ही लोग उस फूड से फ़ायदा उठा सकेंगे, so that does not achieve the main goal of fortification. Third rule is that आप जिस फूड को भी सेलेक्ट करेंगे फॉर fortification, it should be one which is widely consumed by that population. Then the fourth rule is that there should be a suitability of the food and nutrient together. All right? इसका मतलब ये है कि आपने जो फूड चूज़ किया है जिसमें आप न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद उस फूड का टेस्ट, उसका कलर, उसका टेक्सचर, वो सब चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। अदरवाइज़ अगर आप जैसे आयरन फोर्टिफिकेशन के लिए आयरन स्प्रिंकल्स का एक सप्लीमेंट बना था। उसमें ये था कि जब वो बच्चों के खानों के ऊपर वो डाला जाता था तो वो उसका एक थोड़ा-सा ना मेटल सा टेस्ट आता था। तो अगर इस और फिर देन इट वाज़ नॉट सक्सेसफुल, दैट प्रोग्राम वाज़ नॉट दैट सक्सेसफुल। सो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब आप इन दोनों को आपस में मिला रहे हों तो दे शुड यू नो नॉट चेंज और ऑल्टर द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ दैट फूड। देन नेक्स्ट रूल इज़ द टेक्निकल फीजिबिलिटी, क्योंकि जो होल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फूड को फोर्टिफाई करेंगे, इज़ इट टेक्निकली feasible और नॉट, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हो सकता है पूरे प्रोसेस में आपको ज़ाहिर है कोई मशीनरी रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए होती है, और किस तरह से सारा प्रोसेस होगा, हो सकता है वो प्रैक्टिकली ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी फैक्टर्स जो हैं, ये देखने पड़ते हैं। Then another rule for fortification is that there should be limited number of food manufacturers so that you can have, good control and monitoring of the process of fortification. Then the third last is the range of consumption of food. इसमें आपने ये देखना है कि जो फूड है वो आप जिसको फोर्टिफाई कर रहे हैं उसकी रेंज ऑफ कंजम्पशन क्या है पॉपुलेशन में। मसलन आपने कोई जैसे नमक है वो हम सिर्फ खानों में 1 टीस्पून डालते हैं, रोटी ज़्यादातर लोग 1 या 2 खाते हैं, चावल आप 1 से 2 कप, डेढ़ कप खा लेंगे। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि आखिर लोग कितनी क्वांटिटी में उस फूड को तकरीबन खाते हैं, कितनी दफ़ा खाते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं। फिर उसी लिहाज से जो है वो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी सेट की जाती है कि इसको हम इस प्रोडक्ट में इतना ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर दें तो दैट कैन लीड टू द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट, और अगर आप बहुत ही कम डाल देंगे तो उसका तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है? देन सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ द लेजिस्लेशन। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस to rectify the problem of malnutrition or any nutrient deficiency in their country, then they need to have laws. Because once you make a law, then जो मॉनिटरिंग और कंट्रोल है
वो फोर्टिफिकेशन का वो ज़्यादा बेहतर या इफ़ेक्टिव होगा। जैसे सिंध में बाय देयर इज़ अ लेजिस्लेशन दैट ऑल सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स दे हैव टू फोर्टिफाई देयर सॉल्ट विद आयोडीन। ओके, सो आपको जितना भी नमक बाज़ार में मिलेगा, इट बाय लेजिस्लेशन इट शुड बी फोर्टिफाइड विद, आई मीन इन फैक्ट इट इज़ फोर्टिफाइड विद आयोडीन। तो खाली जो आपको नेशनल का मिल रहा है या बड़ी बड़ी कंपनीज़ के आपको ब्रांड मिलते हैं, खाली वही आयोडीन फोर्टिफाइड नहीं होते, बल्कि और जितने भी आपको नमक मिलते हैं बाज़ार में, दे आर आयोडीन फोर्टिफाइड। ठीक है, एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ फोर्टिफिकेशन, येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कानून बना लिया, आपने फोर्टिफिकेशन का तरीका भी बता दिया, लेकिन ज़ाहिर है जो जो मैन्युफैक्चरर्स, मैं सॉल्ट की एग्जांपल लेती हूँ, जो सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या वो सही तरीके से क्वांटिटी डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें मॉनिटर करना पड़ती हैं, तभी जाके फोर्टिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। So, girls, I think this is it for your all chapters from chapter 25 to chapter 32. So, inshallah, we will share the next video lecture. लेकिन अब जो भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो आपके फाइनल टर्म के चैप्टर्स के होंगे। आपके मिड टर्म के जितने चैप्टर्स थे वो इन 2 वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू कंप्लीट हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह खैर।